ہم رکھتے ہیں، حوالہ نکالیں گے۔ مقدس یوحنا رسول کا پہلا عام خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کی تلاوت کریں گے۔ جی، بائبل مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جی، زور سے کہیے آمین۔ آمین کا مطلب ہمیشہ میں بتاتا ہوں اور آپ کو یاد بھی ہے کہ جو اقتباس ہم نے پڑھا ہے، اور جب آپ کو موقع ملتا ہے کہ کہیں آمین، تو آپ کا مطلب ہے کہ آمین کا مطلب کہ ایسا ہی ہو۔ جو پیسج پڑھا گیا ہے، جو اقتباس پڑھا گیا ہے، ہاں ہم مکمل یقین رکھتے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاللیلویہ، 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 پریز دی لارڈ۔ ہم نے گایا بجایا، خداوند نے یہاں پر ہمیں برکت دی۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی ہم ایک باتوں کو سیکھیں۔ جب زبور 138 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے باشگاف الفاظوں میں کہ خدا نے دنیا میں اگر کسی کو سب سے زیادہ عزت رسپیکٹ دی ہے تو وہ اس کا لا تبدیل اور لا خطا کلام ہے۔ ہاللیلویہ، جو بدلتا نہیں ہے بلکہ زندگیوں کو بدلنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ دیکھیں، خدا کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں ہمیں ملتا ہے پڑھنے کو کہ خدا اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا اور رہائی بخشتا تھا۔ اور جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہی کلام مجسم ہوتا ہے، وہی کلام مجسم ہوتا ہے، اور اسرائیل کی گلیوں میں لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، گونگے کیا ہے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بہرے سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ، اس کلام میں اتنی طاقت ہے، اس کلام میں اتنی طاقت ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کے بندھن کلام کے توسط سے ٹوٹے تو اپنے آپ کو آپ نے مکمل خدا کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اور اپنے دل کو پاک کرنا ہے، ذہنوں کو پاک کرنا ہے، اور کلام کو اپنے اندر آنے کا کیا ہے موقع دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، خدا کا کلام اس وقت تک آپ کی زندگی میں اثر انداز نہیں ہوگا، اثر نہیں دکھائے گا جب تک آپ اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا لیتے ہیں۔ ہاللیلویہ، آج آپ نے خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ خدا کا کلام کبھی بھی تاثیر نہیں لوٹتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر خدا کہے کہ ایسا ہوگا اور اگر آپ سمجھیں کہ وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہو رہا تو یہ کلام کی کوئی غلط انٹرپریٹیشن نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر چیک کریں کہ آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہے ہیں۔ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا ہے۔ ہاں، آپ کی زندگی میں کیوں وہ کاموں کو آپ کی زندگی کو چینج نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہ آپ دعوت نہیں دے رہے ہیں، آپ موقع نہیں دے رہے، کیونکہ آپ کے اندر پہلے ہی اتنا کچھ ہے کہ وہ لبا بھرا ہوا ہے۔ جب ایک گلاس کو پکڑتے ہیں تو ایک گلاس میں جتنی مقدار ہے پانی کی، اگر اس میں پہلے ہی وہ پانی کی مقدار پوری ہے تو اگر آپ اور صاف پانی ڈالتے جائیں گے تو پانی اندر جذب ہوگا کہ باہر گرے گا؟ تو اس لیے کوئی چیز ڈالنے کے لیے آپ کو پہلے چیز کو خالی کرنا پڑے گا۔ کسی نئی چیز کو اندر انٹر ہونے کے لیے آپ کو پرانی چیز کو نکالنا پڑے گا۔ تو آج ضرورت ہے کہ یہ کلام جو زندگیوں کو بدلتا ہے، معجزات کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بیماریوں کو تندرستی میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو بے جان ہڈیوں میں جان پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ کلام اگر آپ کی زندگی میں آپ چاہتے ہیں کہ اثر دکھائے تو جو پہلے پانی کا برتن، جو پہلے اندر جو برتن بھرا ہوا ہے اس کو ختم کر دے، نکال دے، پھینک دے، کیونکہ وہ ضائع ہے، اس نے آپ کی زندگی کو برباد کر دیا ہے، بوسیدہ آپ کے اندر وہ چیزیں، آپ کی ہڈیوں کو آپ کو کیا کر دیا ہے، وہ سب کچھ ختم کر دیا ہے، تازگی نہیں بخشی گئی ہے۔ اگر آپ تازگی چاہتے ہیں، اگر آپ ریسٹور ہونا چاہتے ہیں تو آپ نے خدا کے کلام کو اپنے اندر جگہ دینی ہے۔ ہاللیلویہ، آپ تیار ہیں خدا کے کلام کو سننے کے لیے؟ سننے کے لیے تیار ہیں آپ؟ پریز دی لارڈ۔ آج کا جو پیسج میں نے پڑھا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ جس کے پاس
यूहन्ना रसूल खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द है और जो सबसे छोटा शागिर्द है। 12 शागिर्दों में से सबसे छोटा एक शागिर्द है और जो सबसे छोटा शागिर्द है और ये एक वाद शागिर्द है जिसने अपने आप को छोटी उम्र में ही खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द कर दिया है। ये टीन एज में ही खुदावंद के पास चला गया है और इस रसूल को मोहब्बत का रसूल भी कहते हैं। इसने सारी जिंदगी जो टीचिंग दी है टीन एज से लेकर बुढ़ापे तक उसने यही कहा है कि खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, एक दूसरे से मोहब्बत करो, खुदा का पैगाम मोहब्बत है, खुदा का पैगाम ही मोहब्बत है क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। इसने मोहब्बत के अलावा कोई बात ही नहीं की है। और ये जो है 3 खतूत को लिखने वाला ये राइटर है। एक इसके तवज्जुह से इंजील मुबारक लिखी गई जो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान। दर हकीकत वो इंजील खुदा यीशु मसीह की है लेकिन लिखने वाला जो है वो दुनियावी नुक्ता नजर से एक इंसान यानी यूहन्ना रसूल है और लिखवाने वाला जो स्पिरिचुअल ताकत है वो होली स्पिरिट है। हालेलुया। इसके बाद यूहन्ना अरब का मुकाशफा जो दर हकीकत यीशु का मुकाशफा है वो भी इसी शख्स ने तहरीर किया। यानी कि 5 कुतुब का जो ऑथर है, जो राइटर है, जो मुसन्नफ है वो यूहन्ना रसूल है और जो एक वाद रसूल है। 12 शागिर्दों को किसी ने लोगों ने शहीद किया, किसी ने जलते हुए कढ़ाई में फेंकवा दिया, किसी ने दरख्त के साथ उल्टा बोरी में बंद करके लटका दिया और नीचे आग लगा दी, वो जल गया। किसी को आरे में एक टांग को पकड़ कर दूसरी टांग को और आरे में से चीर लिया गया। इस तरह के रसूलों के साथ जुल्म और सितम हुए हैं। लेकिन ये वहाद 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द है जो तबई मौत मरा है, नेचुरली डेथ हुई है इसकी। इसको किसी ने शहीद नहीं किया, किसी ने मारा नहीं है, बल्कि ये नेचुरली डेथ, ये अपनी मौत खुद मरा है। और ये भी एक अलग 12 शागिर्दों में से एक बात है। और इसकी जो टीचिंग है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये खुदा को बड़ा करीब और गहरे तौर पर समझने की कोशिश कर रहा है। और बहुत सारे रसूलों ने खुदा यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से पेश किया। अगर हम 4 अनाजील की बात करते हैं तो जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है उसमें जब यीशु मसीह की शख्सियत को प्रेजेंट किया जाता है, पेश किया जाता है तो मत्ती रसूल खुदा यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करता है। अगर हम मरकुस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसकी बात करते हैं तो वहां पर उसको खुदा यीशु मसीह को बतौर एक खादम की शक्ल में पेश किया जाता है। अगर हम लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान की बात करते हैं तो वहां पर इब्ने आदम के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन यूहन्ना रसूल की अंडरस्टैंडिंग चेक करें कि वो खुदावंद यीशु मसीह को इब्ने खुदा के तौर पर पेश करता है। इसीलिए वो कहता है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर और वही खुदा था। वो ये बात कह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी है कि वो कलाम को मुजस्सम कह रहा है और खुदा के कलाम को क्या कह रहा है कि यही खुदा के साथ था। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है। वो खुदा का बेटा उसको कह रहा है और इसके साथ साथ वो खुदा यीशु मसीह को बतौर खुदा का बेटा और कामिल खुदा भी कहता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा दोनों थे। उनमें एक ही वक्त में 2 शख्सियत काम करती थी। हालेलुया, हालेलुया। वो कामिल खुदा और कामिल इंसान थे। अब यहाँ पर जो पैसेज मैंने पढ़ा है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया जो यहाँ पर पैगाम है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। और आगे बड़ा क्लैरिटी पेश कर दी है, जिसके पास खुदा का बेटा है। सिर्फ बेटा नहीं है, बेटा बहुत सारे लोगों के पास खुदा ने औलाद दी है और बहुत सारे लोग दुनियावी नुक्ता नजर से अपनी औलाद पर फख्र भी करते हैं और तहकीकत करना भी चाहिए, कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस बेटे की बात हो रही है वो कोई आम बेटा नहीं है, वो किसी का सुलभी बेटा नहीं है, बल्कि वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। सुलभी बेटा वो होता है कि इट्स बीन, किसी के सुलभ से, किसी के नुतफे से, किसी के सीड से पैदा हुआ है। लेकिन दर हकीकत ये काम इंसानों के लिए है। वो इंसानी तौर तरीके से नहीं बल्कि महफूकल फितरत कुदरत से कुंवारी मरियम से मुकद्दसा मां मरियम के बतने अतहर से पैदा हुआ है और रूह कुद्दुस की कुदरत से पैदा हुआ है। अब उस रूह कुद्दुस की जो कुदरत है उस बच्चे के अंदर है और उसके पास क्या है? जिंदगी है। किसके पास जिंदगी है? खुदा के इकलौते बेटे मुजस्सम कलाम
हमारी जिंदगी जो है वो खत्म हो रही है तो उसके पास जिंदगी है। जब हम उसके ऊपर अपना मुकम्मल ईमान ले आते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं। वो जिंदगी जो ना मिटने वाली जिंदगी है, वो जिंदगी जो ना खत्म होने वाली जिंदगी है, वो जिंदगी जो इंसान पाता है तो मर कर भी कभी नहीं मरता है। हालेलुया। ये यीशु मसीह के पास जिंदगी है, ये हमेशा की जिंदगी है। अगर किसी को डर लगता है कि वो मर जाएगा या वो मरने वाला है तो सिंपल सादा सा पैटर्न है। और अगर वो मरना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मेरी जिंदगी कभी भी ना खत्म हो, तो सिंपल सादा सा पैटर्न है जो बाइबल मुकद्दस में है कि आप खुदावंद यीशु मसीह पर मुकम्मल ईमान लाएं, अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दें। अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं और आपने तहैया कर लिया, आपने तहैया कर लिया है कि आपने हमेशा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में रिसीव करना है, तो मैं आपको एक पैटर्न देना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो इसलिए मुजस्सम हुआ कि इंसान मखलसी और नजात को हासिल कर सके। उसका पर्पस दुनिया में अपनी बादशाहत काम करना नहीं था। वो दुनिया में मजहब बनाने नहीं आया था कि अब मजहब का अलंबरदार बन जाए और टिकटें कटवाई जाए और जन्नत के दर्शन किए जाए। वो जमीन पर इसलिए नहीं आया कि अपने मजहब को फैलाए, वो इसलिए जमीन पर आया कि अपने खुदा के अपने बाप की बादशाही में सभी को लेके जाए। हालेलुया। अपने बाप की बादशाही में देखिए, वो कहता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। अरे उसके पास जिंदगी थी, है और रहेगी, और वो जिंदगी आपको भी देना चाहता है, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। इस मीन जिसके पास बेटा नहीं यानी खुदा का बेटा नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है। हम अपने बेटों पर बड़ा फख्र करते हैं कि ये हमारा बेटा ये है, हमारा बेटा वो है, हम बिलीव करते हैं, ईमान रखते हैं। लेकिन आपका बेटा जो सुलभी बेटा है वो एक वक्त आएगा कि आपको छोड़ देगा। अगर आप उसकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरेंगे तो आपसे दूरी इख्तियार करना शुरू कर देगा। और ये इंसानी फितरती अमल है, इसमें कोई दो राय ही भी नहीं है। अगर बाप या माँ की तवक्कुआत होती है कि बड़े होकर उनके बच्चे उनकी केयर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये भी एक इंसानी हकीकत है। लेकिन माँ बाप का प्यार बेलौस होता है। वो कोई बिलीव करके तवक्कुआत करके कि करेगा तो मैं करांगी ना। खुदा के बाद अगर दुनिया में इंसान के साथ कोई बेलौस मोहब्बत करता है तो वो बाप और माँ का रिश्ता है। वो बाप और माँ का रिश्ता है जिसमें रत्ती भर का मलाल और कोट नहीं होता। जो बेटा जिम्मेदार भी होवे, बेटी जिम्मेदारी भी होवे, उसने सीने से ही लगाना है। हालेलुया। और वो तवक्कुआत रखते हैं कि आज मैं इनको उंगली पकड़कर चलना सिखा रहा हूं तो कल को इसका हाथ भी मेरे बुढ़ापे की छड़ी बनेगा। हालेलुया। लेकिन ये नसीबों वालों को ये चीज दिन नसीब होते हैं। हर शख्स के पास हर शख्स की जिंदगी में ये दिन नसीब नहीं होते। कल्चर इस कदर है और पुलिस ने इस जहान के खुदा ने दुनिया की आंखों को अंधा कर रखा है। इंसान इग्नोर कर देता है, देखते हुए भी नहीं देखता, और जब उसके ऊपर बीतती है, हालांकि जो करेगा वही, जो बीजेगा वही काटेगा, इंसान इस चीज को भूल जाता है। अब है कि अपनी औलाद पर यकीन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी औलाद, आपके बेटे, आपकी बेटी आपको छोड़ देंगी। और वो अगर आपको कह रहे हैं जी हम आपका सहारा बनेंगे या सब कुछ करेंगे, हो सकता है वो करे, होगा भी, लेकिन मुकम्मल तौर पर ऐसा नहीं होगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा का मुजस्सम कलाम है, जो खुदा का इकलौता बेटा है, उसके बारे में ये लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए का वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। अब मोहब्बत क्या की थी? खुदा बाप ने इंसान से की थी, बेटे ने मोहब्बत नहीं की थी। हम क्या करते हैं? खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह पर ईमान रखते हैं। किस चीज पर ईमान रखते हैं? खुद कहिएगा, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह पर ईमान रखते हैं। बोलिएगा 1 2 3 स्टार्ट। जी, किस पर ईमान रखते हैं? अब 3 चीजों पर ईमान रखते हैं। हम खुदाए सलूस पर ईमान रखते हैं जो तस्लीस फिल तौहीद है, जो 3 में 1 और 1 में 3 है। हालेलुया। अब जो खुदा बाप है वो आसमानी बाप है, हमारा बाप है। यीशु हमारा बाप नहीं, यीशु हमारा भाई और दोस्त है, और रूह कुछ हमारा मददगार है, जो पाक तस्लीस का तीसरा अकनून है। अंडरस्टैंडिंग करनी है, खुदा बाप ने दुनिया से मोहब्बत की, लेकिन बेटे ने अपने बाप की मोहब्बत
मोहब्बत में जमीन पर आना गवारा किया। उसके बारे में एक लतीफ खत में मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि चुनाचे अगरचा वो खुदा की सूरत पर था, लेकिन खुदा के बराबर होने को उसने अपने आप को कब्जा में रखने की चीज ना जाना, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबा हो गया, और यहाँ तक कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। वो मौत जो किसी को कोई माँ अपने बच्चे के लिए सोच नहीं सकती थी, वो मौत जो कोई शख्स अपने दोस्तों के लिए सोच नहीं सकता था। सलीबी मौत इतनी गंदी और होलाक मौत थी कि पूरा नंगा करके, बहाना करके पूरे कूचे में, पूरी गलियों में, पूरे बाजारों में घुमाया जाता था, और आपके और मेरे मसीहा को ये जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा आपके लिए और मेरे लिए, ताकि वो मर जाए, ताकि हम जिंदा रह सके। और अगर आज हम जिंदा हैं और जिंदगी हमारे अंदर मौजूद है, तो वो सलीब पर मसलूब हुआ और मर गया, और क्या किया गया? दफन किया गया, और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। अगर वो सलीब पर ना मरता तो आज हम जिंदों की जमीन पर ना होते और मरे रहते। अगर वो जिंदा है तो इसका निशान है कि हम भी जिंदा हैं। अगर उसकी कब्र खाली है तो उसके मानने वालों की भी कब्र खाली होगी, और अगर वो नहीं मरा है तो हम भी नहीं मरेंगे, क्योंकि उसमें जिंदगी है और उसके मानने वालों में भी जिंदगी होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो कहने का मतलब यह है कि वो जिंदगी का रास्ता है, वो राह और जिंदगी है। वो एक ऐसा रास्ता है, ऐसा एक बात है कि यकीन जाने जिस पे चलने से आपको हयात जिस्त अता हो। अब मरकर भी कभी नहीं मरेंगे। मौत आपके लिए एक आम सी चीज होगी। जब तक आप इस बदन में हैं, खुदा के घर से जला वतन है, और जैसे ही आप इस बदन से आजाद होंगे, जैसे ही कि इंसान की आंखें जमीन पर बंद होती हैं, खुदा के जलाल के सामने उसकी आंखें खुल जाती हैं। यकीन जाने ये तो एक आम सी बात है। सही जिंदगी तो उसके बाद स्टार्ट होती है, और जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह नासरी नहीं है, उसके पास जिंदगी नहीं है। अपने आप को चेक कीजिए कि खुदा यीशु मसीह नासरी आपकी जिंदगी में है, और वो कैसे पता चलेगा? आपके किरदार से। किसी शख्स ने ये कहा कि मुझे अपना मजहब ना पढ़ाओ, मैं आपके किरदार से आपके मजहब को देखना चाहता हूं। मैं आपके किरदार से मुझे पता चल जाएगा कि आपका किरदार कैसा है। जैसा आपका किरदार है, आपका मजहब भी वैसे ही होगा। कोई आपसे कहे ना कि मजहब चेंज कर लो, या जो कर लो, यो जो कर लो, तो सिंपल सादा सा किया कि वो अपना मजहब मत पढ़ाइए मुझे, मैं आपका मजहब आपके किरदार से देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने अपना आप अपने किरदार से दिखाया लोगों को। उन्होंने कभी वो बात नहीं की जो खुद अमल नहीं करते। उन्होंने कभी वो बात नहीं कही जो खुद उसके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे। अगर उन्होंने कहा है कि ऐसा करो, तो पहले इससे कि लोग करें, उन्होंने करके दिखाया। इसलिए सेंट पॉल कहते हैं वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। उसको पता है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो वैसा मिजाज रखना पड़ेगा जैसा कि मसीह यीशु का है। और मसीहत का जो किरदार है, मसीहत की जो शक्ल है, अगर आपने सिंपली तौर पर देखनी है तो यीशु मसीह के करैक्टर में देखें। बाइबल मुकद्दस बाशगाफ अल्फाजों में बताती है कि यीशु मसीह का करैक्टर कैसा है, और मसीही करैक्टर होना ही ऐसा चाहिए। वो एग्जाम्पल ही सेट है। उसका मतलब ये नहीं कि यीशु मसीह ने शादी नहीं की तो भी ना करिए। ऑलरेडी यीशु मसीह ने कहा है कि शादी करना तो इज्जत की बात समझी जाए। उनकी जिंदगी अलग थी। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं, अगर करैक्टर तो उन्होंने ये भी काम किए, लेकिन जो कामों के उन्होंने मना किया है वो काम ना करो, जो काम उन्होंने कहा है वो करो, लेकिन वैसे करो जैसे उन्होंने कहा है। यीशु मसीह था, है और हमेशा रहेगा। आज भी यहां पर मौजूद है मेरे अजीज बहन भाई। वो यहां पर है, लेकिन हम यहां पर होकर भी यहां पर नहीं है। खुदावंद यीशु हमारे साथ है, लेकिन हम उसके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया की बातें हमारे साथ है, दुनिया के काम हमारे साथ है। हम बंदिश में जकड़े हुए हैं। हम अपनी अनापरस्त इतने हो चुके हैं कि हम यकीन जाने उस बुर्जों को तोड़ना ही नहीं चाहते। और अगर कलाम की बात से थोड़ी सी ठेस लगे तो हम एकदम से कलाम को पीछे करके अपनी अनाप
को आगे ले आते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम उस वक्त तक आपकी जिंदगी में असरअंदाज नहीं होगा जब तक आप अनाक के बुर्जों को नहीं तोड़ेंगे। इस बुर्जों को तोड़ दे, इन दीवारों को तोड़ दे। जब तक ये दीवारें, ये पहाड़ रेजा रेजा नहीं होंगे तो खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में सुकूनत नहीं करेगा। और जब खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में सुकूनत करेगा तो बंधन टूटेंगे, बैरियर्स हट जाएंगे, बदरूहें दूर हो जाएंगी, कर्जे की लानतें खत्म हो जाएंगी, नाउमीदी की किरणें आपकी जिंदगी से जाना शुरू हो जाएंगी और बीमारी से तंदुरुस्ती में तब्दील हो जाएंगी और आपकी जिंदगी में वो तमाम बातें आ जाएंगी, वो तमाम खुशियां आ जाएंगी, वो तमाम बरकतें आ जाएंगी कि वो खुदा ने अपने कलाम में अपने खुदाम को देने का वादा कर रखा। और अगर ये आपकी जिंदगी में आज नहीं है तो सिंपली खुदा का बेटा खुदा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नहीं है। खुदा के लोग, हम शाही कहानत का फिरका है, हम एक बरगज़ीदा और मुकद्दस कौम है, लेकिन आज भी अगर हम भिखारियों की तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा अपना वादा भूल गया है। दर हकीकत हम अपनी ज़िंदगी, तर्ज़े अमल ज़िंदगी को भूल गए हैं। वो ज़िंदगी भूल गए हैं जिस ज़िंदगी के बारे में खुदा यीशु मसीह ने तालीमात दी है। अगर आप चाहते हैं कि आप खुशहाल ज़िंदगी बसर करें, आपकी जिंदगी में से परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां, जादू टूना तबीज का असर जाता रहे, आपके पास एक खूबसूरत घर हो, आपके पास एक खूबसूरत गाड़ी हो, आपके पास बेटे और बेटियों जैसी बरकतें हो, आपके हस्बैंड अच्छी जॉब पे लग जाए, आपकी 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 मैरिटल लाइफ कभी डिस्टर्ब ना हो, आपकी बॉडी में कोई भी बीमारियां जन्म ना ले, तो मुख्तसर सादा सी बात है, आप खुदा यीशु मसीह नासरी को, खुदा के कलमे को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं तो बड़ा गुनहगार हूं, अब खुदा मुझे कैसे कबूल करेगा, तो सिंपल है, वो कबूल कर लेगा। खुदा यीशु मसीह रास्तोबाजों के लिए नहीं, गुनहगारों के लिए आया था। और इब्लीस गुनाह से नहीं, एहसास गुनाह से मारता। अगर आज भी आपके दिलों में चोट लगी है, क्योंकि खुदा का कलाम हथौड़े की मानित है, वो दिलों पर ज़रब लगाता है, वो हमें कूदता है, बनाता है, संवारता है। अगर आप संवरना चाहते हैं तो यकीन जाने दुनिया की बातें दुनिया में रह जाएंगी। खुदा दुनियावी नहीं था, वो आसमानी था। आए आसमानी चीजों की तलाश में रहते हैं। आए उस खुदा बाप के इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह को तकते हैं, जिसके बारे में लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। और जब हम उसको तकेंगे, उसको देखेंगे और उसकी देखने से हमारी अंधकार की आंखें रोशन हो जाएगी, क्योंकि हकीकी नूर दर हकीकत वही है। तो जब सूरज चांद सितारे नहीं थे तो खुदा ने जब कहा कि रोशनी हो जा, तो वो नूर चमका था जो यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। और वो नूर आपकी जिंदगी में भी चमकेगा। हालेलुया। चौथे दिन सूरज और चांद बन रहे हैं, लेकिन जो पहले दिन रोशनी हुई थी वो रोशनी खुदावंद यीशु मसीह नासरी थे। हालेलुया। और वो रोशनी आपके अंदर जन्म लेगी। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं कि वो रोशनी हमेशा आपके अंदर जन्म ले, तो यकीन जाने ईमान के बानी कामिल खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। जोर से बोलिए, जिसके पास बेटा है, जोर से कहो, जिसके पास, ऊंची आवाज से, जिसके पास उसके पास, और जिसके पास, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है। आयत को आपने लफ्ज पर लफ्ज कहना है, बरकत मिलेगी। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं, अरे बेटा है कहना है, जिसके पास उसके पास, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है उसके पास। तो क्या आप जिंदगी पाना चाहते हैं या मौत पाना चाहते हैं? जिंदगी पाना चाहते हैं। अच्छा, जेड़ा नहीं पाना चाहता ना जिंदगी, वो तो नहीं बोलेगा, वो तो फिर मौत पाना चाहेगा। क्या आप जिंदगी पाना चाहते हैं या मौत? जिंदगी। ऊंची आवाज से, क्या आप जिंदगी पाना चाहते हैं या मौत? जिंदगी। तो अगर आपने जिंदगी पानी है तो यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कीजिए, तौबा कीजिए और खुदावंद की तरफ रुजू लाइए। वो आपको बरकत देने के लिए यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, जोरदार तालियां।